Hello everyone beta, how are you all? We are going through with a new topic, that is vectors. Actually it comes in motion in straight line, kinematics and work energy power in your books. But we are studying this whole topic in a complete one session in few lectures. So what is vectors? Previously we have studied about motion in straight line, and in motion in straight line we have studied how the objects are moving in a straight path and what is their speed, what is their distance, what is their displacement and acceleration. And in that we have studied that our physical quantities can be divided in few groups. So first of all we are starting with what are physical quantity. Once again I am starting. So physical quantity क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब मेजर्ड विद फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो दोज quantities which are measured with the help of what? Physical instruments are said to be what? Physical quantities. And in physics we are generally measuring the things which are around us, which we can see or which we cannot see. Those we are also doing. Now we can divide this physical quantity in the classification in three different manners, and these are, the first one is what? Scalar quantity. The second one is what? Vector quantity. And the third one is what? Tensor quantity. You can divide physical quantity in three different groups. One is what? Scalar, vector and tensor. What are scalar quantities? Those quantities which are having only magnitude. Only what? Magnitude. No direction. What is magnitude? What is direction? Take an example. If I will say to you that my home is 5 kilometers from here. From here. Here means what? From your school. ठीक है, तो your home is 5 kilometers from your school. By giving this information, it is sufficient to reach your home? The answer is what? It is impossible to reach your home while only saying that your home is 5 kilometers, या my home is 5 kilometers from this building, या from this particular point. तो कैसे, ये क्या इसमें कमी है? कमी इसमें ये है कि इसमें आपने 5 किलोमीटर तो बताया, कहाँ से? जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से, लेकिन आप बेटा ये नहीं बता पाए कि आपको ईस्ट में जाना है, आपको वेस्ट में जाना है, आपको साउथ में जाना है, आपको नॉर्थ में जाना है, या नॉर्थ ईस्ट में जाना है, साउथ ईस्ट में जाना है. यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी डायरेक्शन. तो इस प्रकार की चीज को हम पढ़ चुके हैं. इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डिस्टेंस. तो आपको डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गया? आंसर है स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या पद पाया गया? आंसर आया 5 किलोमीटर. ये जो 5 आया है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटी हो गई जो डिस्टेंस, स्पीड. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ गई स्केलर में, जिसमें डायरेक्शन नहीं है. अच्छा, अब आ जाइए वेक्टर क्वांटिटी में. अब मैं इसी को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूं. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग magnitude comma directions and they obey vector laws of operations. अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सब लॉज ऑफ ऑपरेशन सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो, जैसे 5 मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशन को भी होल्ड करें. अब समझते हैं इसको. जैसे मैंने कह दिया कि माई होम इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर ड्यू ईस्ट. ड्यू व्हाट? ईस्ट. तो अब क्या आपने कहा? 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. नाउ इट इज इजियर. नाउ इट इज नॉट डिस्टेंस. दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो अब आपने स्पेसिफाई क्या कर दिया कि ये चीज हमारी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई. तो डिफरेंस देखिए पहले वाले केस में. इन द फर्स्ट केस आई हैव नॉट स्पेसिफाइंग एनी डायरेक्शन. इन द सेकंड केस आई एम स्पेसिफाइंग 5 किलोमीटर along with what? Due east. It means what? Direction also. So this type of a thing is said to be what? Vector. But there are few quantities in which we are showing what? We are giving the direction as well as magnitude. Even then they are not a vector quantity. Example, electric current.
Example is what? Electric current. It is having magnitude and direction both. Even it is not a vector quantity because it does not obeys the vector laws of operation. So it is not a vector quantity because it does not obeys vector laws of operations. Now a question comes in your mind, what is vector laws of operation? बार बार आप इसे कह रहे हैं. तो vector laws of operation बेटा इस चैप्टर में हम स्लोली और ग्रेजुअली पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? वेक्टर. अभी तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. तो ये ध्यान रखिए, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसके पास में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसको वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करती है. क्लास 12 का बढ़िया क्वेश्चन है कि डज इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, इवन इट इज हैविंग व्हाट? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. आंसर इज व्हाट? इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबेज द वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशंस. आगे देखें, अगली चीज अपने पास आई जिसको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी भी क्लासिफिकेशन अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट हो. क्या हो? दोस क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड अलोंग एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे टॉर्क, टेंशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन देखें. अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. एक बार बेटा रब कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा. देखिए, अब वेक्टर्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया अपने को कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग व्हाट? मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट वन इज, बोलिए क्या होता है भाई? नेक्स्ट मैग्नीट्यूड एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? हैविंग डायरेक्शन. और क्या होना चाहिए भाई उसके अंदर? डायरेक्शन. एंड दे ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशन. दे ओबे वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशंस. क्या ओबे करे भाई? वो वेक्टर के लॉस को ओबे करे, वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशन को वो ओबे करे. ऐसी क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? आंसर आया वेक्टर क्वांटिटी. अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? किसका? वेक्टर का. तो नेक्स्ट जो अपने पास में आया वो आता है इसी में, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का एरो बनाते हैं, रे बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं जिसमें ये आगे वाला हिस्सा कहलाता है हेड. आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसमें हेड. तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? हेड. और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं टेल. बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आगे हमको हर जगह पर ये इस तरीके से मिलेगा कि ये हिस्सा हमारा कहलाएगा टेल और ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? हेड. और ये जो लेंथ है इस एरो की, ये जो लेंथ है मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो इसका मैग्नीट्यूड देगा. मतलब जो इसकी लंबाई है वो क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड शो करेगा. किस चीज का मैग्नीट्यूड? जैसे मैंने कहा 5, 2, 7, 3. तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, इसका एरो जो बनाऊंगा मैं इतना बड़ा बनाऊंगा. तो बेटा इसकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, मतलब उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा. अब एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो इसका एरो मैंने इतना बता दिया. मैंने कहा अगर 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट सेम, तो अब इसके मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पहले वाले से डबल हो जाएगा. तो समझ में आया डिफरेंस? तो जितना बड़ा लंबा एरो, क्या इसका जो लेंथ है वो किसको शो करता है? लेंथ ऑफ वेक्टर इज शोइंग व्हाट? ऑफ एरो इज शोइंग व्हाट? मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये तो हमने बात करी किसकी? ये हमने बात करी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की. अच्छा, अब आगे देखते हैं. अब रिप्रेजेंटेशन होने के बाद में नेक्स्ट थिंग, कितने टाइप के वेक्टर्स. अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी चीज का, और वेक्टर क्या होता है ये हो गया. अगली चीज जो हमारे पास में आती है, इसका इस्तेमाल क्या होता है भाई, इसका यूज क्या, हम पढ़ क्यों है इसको. तो व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर? तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? यूज ऑफ
वेक्टर्स। टुडेज टॉपिक इज व्हाट, जस्ट इंट्रोडक्शन, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। तो वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 11 से लेकर 12 तक, इवन आप कुछ भी करिए आगे, अगर आप साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं तो इसका बहुत सारी जगहों पर बेटा इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट थिंग कम्स, व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर। बेसिकली इट इज यूज्ड इन टू थिंग्स। फर्स्ट, it gives the exact position or orientation of any object. So it gives, or by using it we can specify the exact position of any object or physical quantity. ठीक है, we can specify the exact position and of any object. जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, that person is moving with 2 km/h speed in east, तो मुझे स्पीड पता चल गया। तो अब पहले 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। तो अभी मैंने देखा, 1 घंटे बाद देखा, मैंने बता दिया भाई यहाँ से चला, मान लीजिए शामली से चला, कहाँ पहुँच गया वो पहुँच गया आपके पास में क्या नाम है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जयपुर साइड में पहुँच गया। फिर दो घंटे बाद में एक घंटे बाद और देखा तो रानोली पहुँच गया। फिर 1 घंटे बाद और देखा तो वो कहीं और पहुँच गया। तो ऐसे करके डिस्टेंस भाई वो चल रहा है। इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर। दूसरा, बाई द हेल्प ऑफ वेक्टर्स वी कैन सिंप्लीफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इट कैन सिंप्लीफाई या इट कैन मेक the laws of physics easier to understand, easy to understand. देखिए एक एग्जाम्पल, to every action there is equal and opposite reaction. ये क्या है भाई, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ यही दिया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको हम इंग्लिश में तो ऐसे लिख सकते हैं, बट कहीं सारी जगहों पर हमें बहुत सारी बुक्स में इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। और वो ऐसे लिख सकता है कि जैसे हम देखें डेली की लाइफ में कि ये कोई एक ब्लॉक है, एग्जाम्पल लेते हैं, या हम लोग चेयर पर बैठते हैं वो देख लीजिए, ये कोई एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक ने नीचे के साइड में एक फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक 1 हो गया, और ये कोई हो गया मान लीजिए ग्राउंड 2 हो गया, इसको मैंने 2 मान लिया। ये क्या है, नीचे ग्राउंड 2, तो क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 कहीं लिखा होगा, ऐसे ही ऊपर कहीं लिखा होगा F12 लिखा होगा। तो इसको न्यूटन थर्ड लॉ से स्पेसिफाई करना है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गए, लेकिन डायरेक्शन के लिए साइन कैसा आ गया, माइनस का आ गया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोथ आर इक्वल in magnitude but opposite in direction. That is what saying what Newton's third law of motion. हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इतनी सी बड़ी चीज को लिखने में हमने इतना इजी फॉर्म में मैथमेटिकली इसको लिख दिया। तो ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है लॉस ऑफ मोशन को, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। तो समझ में आया। तो ये तो इसके 2 बेसिक यूजेस आए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है उसमें हम देखेंगे कि हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बेटा आगे नहीं पढ़ सकते, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है भाई, तो जरा देखें कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है। क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर? ये हालांकि कोई टॉपिक नहीं है बुक्स में, बट इसका बड़ा यूज होता है, खूब यूज होता है बहुत सारी जगहों पर। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास में कोई एक वेक्टर ए है। ये क्या है भाई, कोई एक वेक्टर ए है। क्या होता है वेक्टर? ऐसी चीज जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो तो लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। एक स्केल पे लिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर स्केल पर। मैं कहूँ 1 किलोमीटर, ए इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इतना बड़ा तो 1 किलोमीटर होगा नहीं। हमने इसको मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोमीटर, ऐसा एजम्पशन लिया हुआ है। तो एक हमने स्केल लिया, उसके हिसाब से ये वेक्टर ए करा। मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ इस पोजीशन पे। तो क्या करूँगा, मैं एक इस तरीके से 2 लाइन्स को ड्रॉ आउट करूँगा और इसके ठीक पैरेलल इस तरीके से ले जाके यहाँ पर इसको होल्ड कर दूंगा। तो दिस थिंग इज सेड टू बी व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर।
एक वेक्टर को आप यहाँ से यहाँ, यहाँ आगे, कहीं पर भी, आगे पीछे कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट। ध्यान रखिएगा, उसी के प्लेन में इसको आगे और उसी के प्लेन में इसको पीछे आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर कोई वेक्टर आपके पास, मान लीजिए ये कोई वेक्टर b है, तो इसको शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करेंगे, या तो नीचे आप शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप ऊपर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो तरीका समझ में आया, दिस इज नोन एज व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब अगली चीज जो हमारे पास में आती है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। छोटे छोटे चीजें हैं जो इस्तेमाल होंगी, मैं बार बार रब कर रहा हूं बेटा, नोट करते रहना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल को निकालने का एक कंसेप्ट है, वो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि खूब इस्तेमाल होगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। एंगल के लिए टेल से टेल कोइंसाइड करना चाहिए दो वेक्टर्स का, या फिर हेड से हेड क्या होना चाहिए। टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर टेल टेल इज कोइंसाइडिंग और वेदर हेड हेड इज कोइंसाइडिंग। unless you are not getting these condition tail tail and head head, you are not able to find out the angle। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे देखिए ये कोई एक वेक्टर a है और ये कोई एक वेक्टर b है, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, टेल टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें एंगल आपके पास में ये थीटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब टेल से टेल कोइंसाइड कर रही है तो आप तो कहोगे सर ये भी एंगल हो सकता है और पीछे वाला भी एंगल हो सकता है। मैं पीछे वाला एंगल ले लूं तो बेटा बड़े एंगल को नहीं चूज करना है, हमें एंगल वो चूज करना है जो कि कैसा हो, एक्यूट हो। कोशिश करिए कि वो क्या हो, एक्यूट एंगल हो। जनरली केसेस में ये होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन है टेल से टेल और हेड से हेड। तो ये ठीक है, थीटा एंगल ये करेक्ट हो गया। अब मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा, ये एंगल नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए थीटा जहां पर यहाँ फाई ले लूं, तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आगे इसको इतना शिफ्ट कर दो, कितना शिफ्ट कर दो, इतना शिफ्ट कर दिया। अब आपने कितना शिफ्ट कर दिया, इतना शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस एंगल यू विल टेक, दैट इज 180 माइनस व्हाट, 5। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? देन दिस इज योर करेक्ट एंगल। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये एग्जाम्पल हेड और टेल है, ये नहीं, इसको आगे शिफ्ट करना पड़ा या फिर इसको पीछे शिफ्ट करना पड़ा। आप इसको पीछे शिफ्ट कर सकते थे। दूसरा, ये चल सकता है, ये वेक्टर a है, ये मान लीजिए a था, ये क्या था, b था, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। यस, नाउ दिस एंगल यू कैन टेक, सपोज कर लीजिए दिस इज व्हाट, दैट इज 20 डिग्री और 60 डिग्री, तो दिस इज वैलिड, दिस विल बी नॉट टेकन एज, क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो समझ में आया? तो ये थोड़ा सा एंगल के बारे में आप कंसेप्ट को समझ के रखिएगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। आपकी बुक्स में बहुत सारी जगह पर 37 एंगल इस्तेमाल होगा, 57 एंगल इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा? तो ये हमने बात करी किसकी, कैसे एंगल को करते हैं। तो एंगल को करने का मेन कंसेप्ट क्या है, टेल टेल देखना है और हेड हेड देखना है। अगर ये मिल रहे हैं तो होगा, और उसमें से छोटा एंगल चूज करना है। और नहीं पे केस फर्स्ट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर आता है उसको मैं कहता हूं इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। तो क्या डेफिनेशन होगी, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम आर सेड टू बी व्हाट, इक्वल वेक्टर। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी व्हाट, इक्वल वेक्टर। जैसे ये कोई वेक्टर a हो गया और इसके नीचे ही क्या हो गया, कोई वेक्टर b हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों कैसा है, सेम है, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर कैसी है, दोनों की सेम हो गई, और डायरेक्शन भी कैसा हो गया, सेम। दूसरा, कोई कहे आपसे निगेटिव वेक्टर, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ देयर डायरेक्शंस आर व्हाट, अपोजिट। तो टू वेक्टर्स आर said to be negative if
their direction is opposite, अगर उनका डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो। जैसे कि ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए था और ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी, अगर सेम हो गया तो वो जीरो हो जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अपोजिट होने चाहिए, डायरेक्शंस कैसे होने चाहिए, अपोजिट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, जीरो वेक्टर and sometimes we call it also what, null vector. So a vector whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 but having direction. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। मैंने कहा वेक्टर ए इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझिए बाद में। या तो फिर दोनों का लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सम हो तो ए प्लस बी क्या हो गया, ए तो ऊपर की तरफ और बी क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ए, तो ए प्लस माइनस ए, भाई ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर से, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जीरो वेक्टर, डायरेक्शन है। जनरली ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आंसर आया मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता है। जीरो वेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, ये कैलकुलेशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज व्हाट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए कोई वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए कोई जेड एक्सिस है। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स आई, अलॉन्ग वाई जे, अलॉन्ग जेड व्हाट के। तो जो वेक्टर आई है वो कॉमा जे कॉमा के आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आर तो क्या डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस आर सेड टू बी व्हाट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो क्या डेफिनेशन हो गई, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस comma y axis and z axis. This is the definition of orthogonal vectors. स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अगला क्या आता है बेटा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, यूनिट मतलब क्या हो गया, वन। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज व्हाट, वन। How many it is, fourth? Number one is what, fifth? Unit vector क्या आएगा, a vector whose magnitude is 1, whose magnitude is what, 1। उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस सिंबल से होता है, इस सिंबल से। इस सिंबल को हम लोग कैप कहते हैं और कैरेट भी कहते हैं। कैरेट गाजर मत समझ लेना, ठीक है, कैप और कैरेट। तो यूनिट वेक्टर अगर ए लिखना है तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वी विल सिंप्लीफाई, आई विल टेल यू व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अभी मैंने कहा कि मेरे पास में ये कोई एक्स कोऑर्डिनेट है, समझना थोड़ा सा ध्यान से बेटा, देखते हैं इसको। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एंड आई एम हैविंग any specific position here P. It is 3D, मैं 2D नहीं बना रहा हूं, 3D मतलब ये रूम है
जहाँ आपका वीडियो बन रहा है तो एक कोई x हो गई, एक कोई y हो गई और एक कोई क्या हो गई z, जो कैमरे की तरफ आ रही है वो z हो गई, और ये कोई पॉइंट p है, ये कोई पॉइंट क्या है p, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो एक परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ कर दीजिए, एक y पे, और एक किस पे ड्रॉ कर दीजिए, z पे ड्रॉ कर दीजिए। तो इसकी पोजीशन मिल गई। तो इसकी पोजीशन जो निकल के आई मान लीजिए वो आई है a, b, c, एंड आई हैव टू राइट P एज अ वेक्टर। मुझे P को इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर P लिखूं, क्या लिखूं बेटा, वेक्टर P, तो ये क्या हो जाएगा, a I प्लस b j प्लस c k। व्हाट इज I? ऑर्थोगोनल वेक्टर, अ वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो a तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन दे रहा है। ये क्या हो गया, b मैग्नीट्यूड मिल गया, उसका क्या हो गया, डायरेक्शन जे ने दे दिया। c मैग्नीट्यूड हो गया और उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो चीज बनी वो हमारे पास में क्या बन गई, वेक्टर p। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस b होता तो यहाँ पर साइन कैसा जाता है, माइनस। यहाँ माइनस c होता तो यहाँ कितना जाता है, माइनस c। मान लीजिए c नहीं होता तो क्या हो जाता, 0k हो जाता। क्या होता, 0k। तो अगर मानिए कि आपके पास p ये है, p कितना निकल के आया, ai प्लस बी जे प्लस सी के, तो मॉड ऑफ p कितना होगा, तो आंसर है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a को भी होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मान लीजिए माइनस b होता तो माइनस b का होल स्क्वायर आता प्लस c। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। इफ, अब यहां लिख देता हूं, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस byj प्लस czk, then mod of a will be under root of ax square plus by square plus cz square. So do you able to understand what is unit vector and how it is find out? This is the thing. चलिए आगे देखते हैं। अगला इसी में लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है, कोप्लेनर वेक्टर। दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। तो दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। मान लीजिए ये कोई वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है, तो क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा हाथ हो सकता है इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। तो क्या हो गया, ये सेम प्लेन हो गया। तो जितने भी दो वेक्टर दुनिया में पाए जाते हैं, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज लाई इन व्हाट, सेम प्लेन। तो नोट कर लीजिए, नोट करके, एनी टू वेक्टर्स lie in same प्लेन। अब आप बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर A हुआ और एक दूसरा बच्चा बोला सर ये मेरा वेक्टर B हो गया। अब आप सेम प्लेन में लाइए, या फिर मेरा ये वेक्टर V हो गया, आप बताइए कैसे सेम प्लेन होगा। हो सकता है इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, शिफ्ट, वहां पर ले जाइए और फिर हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द फ्यू, दीज आर व्हाट, फ्यू टाइप्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। तो ये हमने पढ़ा कि क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j minus 5k, then find unit vector of A. Find unit vector. तो वेरी सिंपल कोई पोजीशन। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। What is vector A here? Simply we have determined that is 2i plus 3j minus 5k. एंड व्हाट इज द मॉड, मॉड अभी मैंने आपको बताया। क्या करिए, इसके पहले आई के पहले जो कोफिशिएंट है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल ऐसा लिया इसमें आपकी गलतियां कम हो जाए। माइनस 5 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए कितना निकल के आएगा बच्चे, आंसर आया 4 प्लस 9 प्लस 25।
ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो 25 प्लस 13 कितना होता है भाई? 25 प्लस 13 मेरे ख्याल से होता है 38, देख लीजिएगा। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर ए? सो यूनिट वेक्टर ए विल बी हाउ मच? 2i प्लस 3j माइनस 5k divided by how much? Under root 38. So this is the representation of unit vector, or sorry, this is the unit vector A. ठीक है, अब आप चाहें तो 2 अपॉन अंडर रूट 38i, 3 अपॉन अंडर रूट 38i माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 38i इंटू के, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारे क्या निकल के आया है? एक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड? यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे यूनिट वेक्टर ए बताइए निकाल के, तो क्या आप निकाल के दिखा सकते हैं कैसे यूनिट वेक्टर निकलेगा? सपोज कर लीजिए मैंने आपको दे दिया इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड फाइंड यूनिट वेक्टर ए। जल्दी निकालो, फटाफट सोचो कैसे निकालोगे, क्या करोगे? ओरल है, जल्दी से। तो जैसे ही आप इसको निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई? आ जाओ, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए। आ जाओ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये कितना हो गया? आई प्लस जे, और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। बस ओरल हो गया, नहीं हो गया भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हमने बात करी बेटा, किसके ऊपर बात करी हमने? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आज हमने बात करी है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। थैंक यू।